ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਆਈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੇਖ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ ਥੋੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ। ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਉਪਜੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ: ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਮੀ? ਹਾਂ, ਲਸਟਫੁਲ। ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਔਰਤ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ, ਸੱਪ ਤੇ ਮੌਤ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ, ਲਾਲ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਿਨੀ ਅਪਸਰਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਠੁਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਹਿਨੀ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ, ਥੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਆਈਕਨੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਆਸਣ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਕਸਰ ਕਮਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਬਾਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 4 ਵੇਦ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਚਿੱਤ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਲੂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ। ਇਹ ਜੀਵਨ, ਬਰਕਤ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ? ਹਾਂ, ਜਪ ਮਾਲਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ,
ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਧਿਆਨ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਤੇ ਸੰਘਾਰਕ। ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਨ, ਚੱਲਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਵੇਂ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮ ਸੱਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਸੇ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ, ਉਸ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, इस पे विचार करने लई आज हम हिंदू आइकोनोग्राफी पर बात कर रहे हैं। जी, यानी जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उनमें जो अलामती माना छुपे होते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर आज हम ब्रह्मा, जो तख्लीक के देवता माने जाते हैं, उनसे मुताल्लिक जो रिवायात हैं उनका ज़रा गहराई से जायज़ा लेंगे। और हमारे पास इस मौजू पर काफ़ी आप कह लें इल्मी मज़ामीन हैं, आर्टिकल्स हैं, दूसरी तहरीरें भी हैं। जी हाँ, तो मकसद यही है कि इन मूर्तियों की अलामती ज़ुबान को समझें, ब्रह्मा की क्या अहमियत है, उनसे जुड़ी कहानियाँ, और एक सवाल ये भी कि उनकी पूजा निस्बतन कम क्यों की जाती है। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की, जिसे कहते हैं, तहों को खोलते हैं। और ख़ास तौर पर वो जो मूर्तियों में अक्सर चार बाजू नज़र आते हैं, उनका क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत अहम है कि ये अलामतें सिर्फ वो सजावट या खूबसूरती के लिए नहीं है। अच्छा, ये बहुत गहरे फलसफियाना और रूहानी तसव्वुरात को जाहिर करती हैं, और आइकनोग्राफी जो है वो इसी इल्म का नाम है, इन मानों को समझने का। तो शुरुआत ब्रह्मा से करते हैं। हिंदू त्रिमूर्ति जो है, यानी तीन बड़े देवता, उसमें ब्रह्मा को कायनात का खालिक माना जाता है। जी, विष्णु पालनहार और शिव फना करने वाले। सही। और कुछ जराए कहते हैं कि ब्रह्मा के जो चार चेहरे हैं वो चारों सिमतों की या शायद चार वेदों की नुमाइंदगी करते हैं। जी हाँ, एक रिवायत ये भी है कि ब्रह्मा पराब्रह्म यानी जो आला हकीकत है उससे जाहिर हुए, और फिर उन्होंने गहरे ध्यान यानी मुराकिबे के जरिए चारों वेद तख्लीक किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जराए में एक आप कह लें दिलचस्प हवाला महाभारत का भी है। अच्छा। इसके मुताबिक एक मौके पर देवताओं को अपनी हुक्मरानी खत्म होने का डर हुआ, तो उन्होंने ब्रह्मा से मदद मांगी। जी। तो जवाबन ब्रह्मा ने औरतों को तख्लीक किया, जिन्हें इस मत के मुताबिक मर्दों के लिए आजमाइश का जरिया बताया गया। महाभारत के अल्फाज हैं, एक शहवत परस्त औरत भड़कती हुई आग है, वो स्त्री की तेज धार है, वो जहर, सांप और मौत सब कुछ एक में है। ये तो काफी सख्त अल्फाज हैं। जी, ये हवाला इस दौर के बयान करदा समाजी तसव्वुरात या शायद अदबी अंदाज की अक्कासी करता है। जराए में ये भी आता है कि कायनात में तवाजुन के लिए मौत को भी एक खातून की शक्ल में तख्लीक किया गया, गहरे रंग, सुर्ख लिबास और सुर्ख आंखों वाली। अच्छा, ब्रह्मा का सरस्वती से जो ताल्लुक है उस पर भी मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। जी, मैंने भी पढ़ा है, कुछ उन्हें बेटी कहते हैं, कुछ बीवी।
जी, एक तशरीह ये भी है कि शायद सरस्वती नाम इल्म की दो अलग अक़साम से जुड़ा है। एक अपराविद्या मतलब दुनियावी इल्म की देवी, अच्छा, जो ब्रह्मा की बेटी और विष्णु की बीवी कहलाए, और दूसरी पराविद्या यानी रूहानी इल्म की देवी, जो ब्रह्मा की बीवी बताएंगे। ओह, ये भी मुमकिन है कि वक्त के साथ पुराणों में कुछ आप कहें तब्दीलियां आईं, जिससे ये मुख्तलिफ तशरीहात पैदा हुई। और ये जो बात है कि ब्रह्मा की पूजा कम क्यों होती है, इसकी एक वजह एक कहानी में अप्सरा मोहिनी का श्राप यानी बद्दुआ भी बताई जाती है। जी हाँ, कहा जाता है कि ब्रह्मा ने उसकी मोहब्बत ठुकरा दी, तो उसने गुस्से में आकर बद्दुआ दी कि दुनिया में इनकी पूजा नहीं होगी। तो ये कहानियां वजह बताती हैं कि पूजा क्यों कम हुई, लेकिन इन देवताओं को बशमूल ब्रह्मा जाहिर कैसे किया जाता है? यहीं पर आइकोनोग्राफी यानी मूर्तियों की अलामती जुबान सामने आती है। बिल्कुल, आइकोनोग्राफी या शबीहों का मुताला हमें यही बताता है कि ये अलामतें एक कोशिश है इस मावराई हकीकत को समझाने की जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। हिंदू रिवायत में मूर्तियां सिर्फ नुमाइंदगी नहीं है, उन्हें देवता की मौजूदगी का एक मरकज, एक फोकस समझा जाता है। मरकज? जी, ये नजरिया खुदा की हमागिरियत यानी हर जगह मौजूदगी के तसव्वुर पर मबनी है। जब मूर्ति को खास रसूमात से मुकद्दस किया जाता है तो गोया खुदा से दरख्वास्त की जाती है कि वो इस शक्ल में अपनी मौजूदगी जाहिर करे ताकि अकीदतमंद उनसे एक ताल्लुक कायम कर सके। अच्छा, उपनिषदों में भी मूर्तियों को उपासना यानी इबादत और मुराकबे के एक जरिए के तौर पर बताया गया है। जी हाँ, विष्णु संहिता में तो सवाल भी उठाया गया है, बगैर किसी शक्ल के खुदा पर ध्यान कैसे किया जा सकता है, इसीलिए शक्ल पर ध्यान मरकूज करते हैं। बिल्कुल। तो अब कुछ आम अलामतों को देखते हैं जो अक्सर मूर्तियों में नजर आती हैं। जैसे आपने शुरू में कहा, चार बाजू, उनका क्या मतलब है? चार बाजू, जी, ये एक बहुत कसीर जहती अलामत है। ये कई चीजों की नुमाइंदगी कर सकती है। वजूद की चार हालतें जैसे ब्रह्मण, ईश्वर वगैरह। ओह, चारों सिनतें जो खुदा के हमागीर तसल्लुत की अलामत है। जिंदगी के चार मराहिल यानी आश्रम। अच्छा। हिंदू नफ्सियात के चार पहलू, मन यानी जहन, बुद्धि यानी अकल, अहंकार यानी अना और चित्त यानी शऊर। वाह, काफी गहरी बात है। जी, और शऊर के चार दर्जे भी, और इंसानी जिंदगी के चार मकासद, काम यानी ख्वाहिशात, अर्थ यानी वसाइल, धर्म यानी फराइज और मोक्ष यानी निजात। तो ये सिर्फ सिमते नहीं बल्कि वजूद और जिंदगी के इतने सारे पहलुओं की अलामत, ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, देवता अक्सर कमल के फूल पर नजर आते हैं, पद्मासन जिसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है? कमल का तख्त या पद्मासन पाकीज़गी की एक बहुत ताकतवर अलामत है। देखें, कमल कीचड़ में उगता है लेकिन खुद बिल्कुल साफ और पाक रहता है। जी हाँ। तो ये जाहिर करता है कि इलाही या रूहानी वजूद दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उसकी नापाकियों से कैसे बुलंद रहता है। बहुत खूब। और हाथों में जो चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी एक फंदा सा नजर आता है, पाशा कहते हैं उसे। पाशा? जी। वो उन तीन बंधनों की अलामत है जो हिंदू फलसफे के मुताबिक रूह को जन्म और मौत के चक्कर में बांधे रखते हैं। कौन से तीन बंधन? अविद्या यानी लाइल्मी, कर्म यानी आमाल के नतीजे, और वासना यानी गहरी आदतें या ख्वाहिशात। अच्छा, तो ये उन बंधनों की अलामत हैं। और एक पानी का बर्तन सा भी होता है, कमंडलू। जी, कमंडलू। ये बुनियादी तौर पर फरावानी, सखावत और पाकीज़गी की अलामत है, जिंदगी बख्श पानी या अमृत की। ठीक। और आखिरी एक चीज, किताब या पुस्तक? पुस्तका, ये तो जाहिर है इल्म की अलामत है, खास तौर पर वेदों और मुक़द्दस सहीफों की, इलाही हिकमतों और रूहानी बसीरत की। तो आज हमने हिंदू आइकनोग्राफी की इस अलामाती दुनिया की एक झलक देखी, ब्रह्मा की शख्सियत के कुछ पहलुओं और उनसे जुड़ी रिवायात को समझा और चंद अहम अलामतों के माने पर बात की। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये अलामतें सिर्फ कोई फनकाराना इजहार नहीं है, बल्कि ये गहरी रूहानी और फिलॉसफियाना हकीकतों को समझने के इशारे हैं। ये गौर व फिक्र की दावत देती हैं जो शायद सिर्फ मंतिक से हासिल ना हो, और ये सोचने की बात है कि ये कदीम अलामात आज की दुनिया को समझने में, चाहे वो मजहबी तनाजुर में हो या उससे बाहर, किस तरह हमारी मदद कर सकती हैं और क्या माने रखती हैं। सोचिए, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया वही अपनी ही बनाई दुनिया में क्यों नहीं पूजा जाता?
आज हम सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के इसी अनसुने रहस्य से पर्दा उठाएंगे। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि का रचयिता ही अपनी बनाई दुनिया में क्यों नहीं पूजा जाता? आज हम भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर के रहस्य और उस श्राप की कथा जानेंगे जिसने उन्हें अपूज्य बना दिया। कल्पना कीजिए उस अनंत शून्य की, उस समय की जब समय भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधकार और कारण सलिल यानी आदि कारण का जल फैला था। उसी शांत असीम जल में शेषनाग की शैया पर प्रकट हुए भगवान विष्णु। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी नाभि से एक दिव्य सुनहरे रंग का कमल खिला, जिसकी आभा से अंधकार छट गया। उस कमल के मध्य में विराजमान थे 4 मुख वाले ज्ञान और तेज से परिपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा। जागृत होने पर उन्होंने चारों ओर देखा पर उन्हें कोई नहीं दिखा। इसी एकांत ने उन्हें सृष्टि रचने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी कल्पना से, अपने तपोबल से इस ब्रह्मांड की रचना की। अपने हर मुख से एक एक वेद को प्रकट कर ज्ञान की नींव रखी। ग्रहों नक्षत्रों को उनकी कक्षा दी, समय का चक्र चलाया और फिर अपने ही शरीर से मनु शतरूपा के रूप में पहले मानव जोड़े का सृजन कर इस धरती पर जीवन का अद्भुत खेल शुरू किया। लेकिन कथा का एक स्याह पन्ना अभी बाकी था। कहते हैं ब्रह्मा के मूल रूप से 5 सिर थे, जो चारों दिशाओं और आकाश पर दृष्टि रखते थे। पर जब उन्होंने शतरूपा की रचना की, जो सौंदर्य और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी, तो वे स्वयं अपनी ही रचना पर मोहित हो गए। उनका विवेक काम के अधीन हो गया। शतरूपा ने अपने पिता की अनुचित दृष्टि से बचने के लिए हर दिशा में जाने की कोशिश की, पर ब्रह्मा ने हर दिशा में एक नया मुख उत्पन्न कर लिया। अंत में जब शतरूपा आकाश की ओर गईं, तो ब्रह्मा ने ऊपर की ओर एक 5वां सिर प्रकट कर दिया। सृष्टि के नियम का ये घोर उल्लंघन देखकर कैलाश पर ध्यान मग्न भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उनका क्रोध ब्रह्मांड को कंपा गया। उन्होंने अपने रौद्र रूप काल भैरव को प्रकट किया और आदेश दिया कि इस अहंकार और अधर्म के प्रतीक 5वें सिर को काट दिया जाए। ये केवल एक सिर का कटना नहीं था, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने का एक कठोर निर्णय था। अहंकार ने ब्रह्मा से उनका 5वां सिर तो छीन लिया, लेकिन उनकी परीक्षाएं अभी बाकी थीं। एक भूल ने उन्हें शिव के क्रोध का भागी बनाया, तो दूसरी भूल उन्हें अपनी ही पत्नी के श्राप का पात्र बनाने वाली थी। पुष्कर में एक यज्ञ के दौरान जब उनकी पत्नी सावित्री को आने में देर हुई, तो उन्होंने मुहूर्त के लिए गायत्री नामक ग्वालिन से विवाह कर लिया। जब देवी सावित्री यज्ञ मंडप में पहुंची और अपने स्थान पर किसी और को देखा, तो उनका हृदय अपमान की ज्वाला से जल उठा। उनकी आंखों में आंसू और वाणी में ब्रह्मांड को कंपा देने वाला क्रोध था। तब उनके मुख से वो श्राप निकला जिसने सृष्टि के रचयिता के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हे सृष्टिकर्ता, जिस संसार को आपने बनाया है, उसी के लोग आपको भूल जाएंगे। पुष्कर को छोड़कर कहीं भी आपका मंदिर नहीं बनेगा और आपकी पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर में ही स्थित है। ये कथाएं हमें गहरा सबक सिखाती हैं कि कर्म का विधान अटल है और ये स्वयं सृष्टिकर्ता पर भी लागू होता है। एक क्षण का अहंकार और एक पल का अधैर्य सबसे बड़ी शक्तियों को भी कलंकित कर सकता है, क्योंकि शक्ति का सच्चा अर्थ उसे पाना नहीं, बल्कि उसे धर्म और संयम से धारण करना है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कि क्या ब्रह्मा को मिली सजा उनके कर्मों के लिए उचित थी। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आज हमने जाना कि कैसे ब्रह्मा के मोह और अधैर्य ने उनकी पूजा को सीमित कर दिया। ये कथा सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता और नैतिक आचरण कितना आवश्यक है। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए और प्रेरित होते रहिए। धन्यवाद।